Hello everyone, this is Mukesh Kumar and today we are going to discuss in lecture number 3, Principles of Management. The topic is different schools of management thought. What is the different schools of management thoughts? These are physical schools or they are something else? So I would like to define that these schools are actually management thoughts of various management thinkers in which we define the management in according to various ways, and these ways are different schools of management. If we will define a management through the scientific method, then that is scientific management school. If we will define according to behavior, that will behavioral management school. If we will define according to future scope or future strategies and future decisions, then that will be considered about the contingency. So these are the various management schools that will be useful for management thoughts. So in this lecture, we are going to discuss about the different schools of management thought. First school is scientific management school. What is the scientific management school? The school envisages management to be a scientific management. It means scientific method and scientific principles are to be followed and applied in managing the affairs of an enterprise. That means if we are considering some management theories, then we have to adopt some theories that are scientifically proved, and the principles are really scientifically achieved by various management thinkers. So these methods will be useful for an organization to achieve their goals. So if we are adopting these methods, then this management will be considered as scientific management method. F.W. Taylor, that known as Frederick Winslow Taylor. Life duration was 1856 to 1915. Popularly known as the father of scientific management movement, was the first to recognize and emphasize the need for adopting a systematic scientific approach to the task of managing an enterprise. F.W. टेलर, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है, वो पहला इंसान था जिसने अडॉप्ट किया था एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच को मैनेज किसके लिए, किसी भी एंटरप्राइज के मैनेजमेंट के लिए. टेलर joined the Midwell Steel Company in the US as a worker and later on rose to the position of chief engineer. Subsequently, he joined the Bethlehem Works where he experimented with his ideas and made his contribution to management theory for which he is so well known. तो टेलर वो इंसान था जिसने एक लेबर के रूप में मिडवेल स्टील कंपनी यूएस की उसको ज्वाइन किया था और बाद में उसी में वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक प्रमोट किया गया था. उसके बाद उसने बेथलेहम वर्क्स में काम किया जहां पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी मैनेजमेंट की साइंटिफिक थ्योरी है उसको दुनिया के सामने रखा. He studied the cause of low efficiency in industry and came to the conclusion that much of the waste and inefficiency is due to the lack of order and system in the methods of management. उसने अपनी स्टडी में पाया कि बहुत कम जो एफिशिएंसी है इंडस्ट्री की, वो किस लिए है, क्योंकि उसके अंदर एफिशिएंसी आपकी इंडस्ट्री में कम हो रही है और आपका वेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम है वो कोई आपका मेथड नहीं है, कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है. तो उसकी वजह से आपको अच्छी एफिशिएंसी भी नहीं मिल पा रही और आपका वेस्टेज है वो भी ज्यादा हो रहा है. He observed that the managers were usually ignorant of the amount of work that could be done by a worker in a day and had no clear notion of the best method of doing the work. मैनेजर्स को एक्चुअली पता ही नहीं था कि कौन कितना काम है वो छोड़ रहा है और कौन कितना काम कर रहा है और कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है किसी भी काम को करने का.
तो मैनेजमेंट के इस इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारा काम है वो डिले रहता था, वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा था। इट वॉज हिज रियलाइजेशन दैट देयर वर lack of efficient work standard, absence of clear cut divisions of workers between the managers and workers, lack of incentives of the workers, unscientific selection and placement of workers. So he therefore suggested that the managers should follow a scientific approach in their work and apply scientific method for achieving higher efficiency. जब उसने इंडस्ट्रीज में देखा कि बहुत सारा काम है वो एफिशिएंसी है वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपका वर्क स्टैंडर्ड नहीं है कोई, जो भी आपका काम है मैनेजर का और वर्कर का, उनके अंदर कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, कौन काम क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो कंप्लीटली किसी को भी डिफाइन नहीं किया गया। वर्कर्स के लिए इंसेंटिव्स है वो बहुत कम है, तो दैट मीन्स उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। जब वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाता है तो वहां पे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट किया जाए कि कौन सा वर्कर है क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा। तो इसलिए उसने मैनेजर्स को सजेस्ट किया कि उन्हें एक साइंटिफिक अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए अपने काम में, ताकि साइंटिफिक मेथड है उससे वो अपनी हायर एफिशिएंसी है वो अचीव कर सके। विद ए व्यू टू इम्प्रूविंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस ही कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनको इम्प्रूव करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ताकि उसे पता चल सके कि हाँ कौन से मेथड से या कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से अपना मैनेजमेंट है अपना प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स इनटू ए फिलोसफी विच इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उन सारे एक्सपेरिमेंट की वजह से उसने जो फिलोसफी दी है अपनी उसी को हम जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, जिसके बारे में अपने को स्टडी करनी होती है और हमें उसके बारे में स्टडी करके हम अच्छे से अपना मैनेजमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं, अपने हायर गोल्स को अचीव कर सकते हैं और हायर एफिशिएंसी है वो हमें मिल सकती है। He published many papers and books, and all contributions were compiled in his book, The Principles of Scientific Management. Taylor's idea on scientific management were greatly expanded by H.S. Pearson, Henry L. Gantt, and Leland Gilbert, Harrington, Emerson, and M.L. Cook. So these were the management thinkers who also expanded his work in the scientific management. But the father of scientific management was F.W. Taylor. So we have to learn everything about the scientific management, and this is the enough for the scientific management school. So now we will discuss about the human behavioral school. What is the human behavioral school? A behavioral approach to management relates to the application of the methods and findings of psychology and sociology to the organizational behavior. This school emphasizes actions and reactions of the human being in group activity. Mental reactions like emotions, feelings, aims, instincts, hopes, and desires regulate a man's behavior or conduct. ए बिहेवियरल अप्रोच है वो कोई भी एप्लीकेशन है मेथड की या फिर किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको डिफाइन करती है। किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, सोशली बिहेवियर है, वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है, उनको बेनिफिट दे सकता है, या फिर उनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं। तो इसलिए मेंटल रिएक्शन लाइक इमोशन, फीलिंग्स, एम, इंस्टिंक्ट, होप एंड डिजायर्स वो एक मैन के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, चेंज करते हैं या फिर उसे कंडक्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयज से किस तरह से हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम मिल सकता है। Human behavioral school believes that unless these mental reactions of the workers are considered and their problems are either solved or at least attempt are made to fulfill their needs and demands by the managers, effective and meaningful management is not possible. मैंने ह्यूमन बिहेवियर स्कूल है उसका ये बिलीव है कि जब तक
किसी भी वर्कर की मेंटल रिएक्शंस को समझा नहीं जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा, या फिर एटलीस्ट ट्राई भी ना किया जाए उनको सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स के द्वारा, तो तब तक कोई भी मीनिंगफुल या इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि हमें अगर इफेक्टिव और मीनिंगफुल मैनेजमेंट रखना है अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करना होगा, और उनकी प्रॉब्लम्स को या तो हम सॉल्व करें या एटलीस्ट हम ट्राई करें उनको सॉल्व करने की। तभी हम उनकी मेंटल रिएक्शंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, ताकि वो मेंटल रिएक्शंस हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रहें और यूजफुल रहें। Thus, according to this school, performance of managerial activities in consideration of the conduct or behavior of working personnel is an effective and decent management. इस स्कूल के अकॉर्डिंग किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस किसी भी वर्कर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंसिडर की जाती है कि वो इफेक्टिव है या डिसेंट मैनेजमेंट है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा आपके वर्कर की एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस है वो झलक के बाहर आती है। दैट इज द सिंपल थ्योरी। एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च of many psychologists and sociologists, and after the Hawthorne experiment, human behavior management thought was evolved out. तो मेनली जो इफेक्ट है वो हॉथरन एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। हॉथरन एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे बहुत सारे वर्कर के ऊपर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बिहेवियरल मैनेजमेंट थॉट है वो दिया। In this respect, the contribution of Mary Parker Follett, a member of Human Behavior School, is particularly mentionable. Other notable propagators of this school next, trends in management. Modern trends in management favor agile, iterative processes that focus on innovation, software development, and social impact. मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जो कि मैनेजमेंट में वो फेवर करते हैं किसी भी आपके प्रोग्रेस को, जो कि आपके इनोवेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सोशल इम्पैक्ट को फोकस करती है या उनकी प्रोग्रेस को बढ़ाती है। मैनेजमेंट इज ए रैपिडली इन्वॉल्विंग फील्ड। मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां पे हमेशा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इवन नाउ स्टार्टअप ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग आउट न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ लुकिंग एट हाउ टू अलाइन देयर रिसोर्सेज। नए नए ट्राइज इनोवेशंस हो रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं नए तरीके ढूंढने के, नई चीजें ढूंढने के। तो किस तरह से हम उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, हाउ टू मेक डिसीजंस क्या लेने हैं, एंड व्हाट मैनेजरियल अप्रोचेज, कौन सी अप्रोच है जो अपने को यूज करनी है मैनेजमेंट में। और लैक ऑफ मैनेजरियल अप्रोचेज माइट यील्ड द बेस्ट कल्चर ऑफ फॉर ग्रोथ। क्या अपने मैनेजरियल अप्रोच अपने को यूज करनी चाहिए या जिसको यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छे से अच्छा कल्चर मिल सकता है ग्रोथ के लिए। इट्स एन इंटीग्रेटिंग टाइम फॉर मैनेजमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कांस्टेंट। When looking at new management approaches, it is useful to consider the area in which these organizations operate. Software, non-profit, and entrepreneurship are all seeing substantial deviations from standard corporate management approaches. हमें ये देखना होता है कि मैनेजमेंट में कौन सी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। अप्रोच का हमें पता तब चलता है जब हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, एरिया क्या है उसका। हमें पता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, कि जो कि सारे के सारे डेविएशंस को देख रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अप्रोच को चूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि हम जब भी मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द लेक्चर एंड होप यू ऑल गेट everything clearly. Thank you so much.